Hello students, today we will start the first chapter of the class 9, the SST part, economics, that the story of village Palam. Okay, fine. So, we'll be starting with the first chapter. Let's start with the chapter. Fine, please. So, in the first chapter, the story of village Palampur, we will be knowing the production activities which is carried on in Palampur. Actually, the basic objectives of this chapter is how to know about the production activities, and production is one of the economic activities. Thing is that we in this Palampur is an imaginary village. There is no such village which is known as Palampur, but it is just an imaginary village where we will be knowing how the village people are carrying on their production activities, what is the main occupation of their that village, and what type of village it is, whether there is the health, education facilities are there beside the production activities, etc., etc. Okay, so let's start with the chapter. First one is the what type of the village is the Palampur? Palampur is some extent the well developed village. You know that the what is village? Generally, we are when the village is coming in our mind before few years, when the village we are thinking about the village, what type of the scenery is coming in our mind? Village is something where there is no electricity, there may be the kacha road, there may not be school, college, etc. But Palampur is not like such village. It is the village some extent it is resemble with the village one of the village of the western part of the UP, though the Palampur is not the real village, but it is resemble with one of the villages of the UP, that is called the Palampur. Okay, the Palampur, in Palampur, there is well connected roads, pakka roads are there, all weather pakka roads are there, and it is well connected with the nearby town, that is Raniganj and Sahapur. Raniganj is a town just 3 kilometers away from the Palampur. Okay, and in these roads, always starting from the bullock cart, tonga, buggies, car, jeep, everything are running on the road. Clear? And people generally, whatever they are producing, they are carrying that produce to the market of the Sahapur and the Raigan. Generally, they are carrying the jaggery, that is the good which they are making out of the sugarcane. Fine, that they are carrying through their this type of the transport. Fine. So first about the transport system of the Palampur you are getting. Then after that, what type of the means how the what type of the people are living in Palampur? Actually, in Palampur, 450 families are living, and out of 450 families, 80 families are they are the upper caste family. Fine. Upper caste means the Brahmin and the Kshatriya. These are the upper caste peoples are there. Fine. And rest of the, beside that 80 families, out of the 450 families, rest people are the mainly Dalit and the lower caste of the people. Dalit are generally the SC who are consisting of the 1/3 of the population of the total Palampur. Fine. And what type of the living standard they are maintaining? The upper caste people, they are remaining in the pakka house made of the cements, and they are remaining in the heart of the village, and the Dalit and the STs, they are remaining in one side of the village, in the corner of the village, and they are remaining in jugis, the kacha house. They won't have the proper sanitation facilities, etc. Clear? This is about the living standard, and that about the different type of the category of the people in Palampur. Fine. Now come to the electricity. What type of the electricity connections is there in Palampur? Palampur is really a lucky village. Why? Because electricity came very early to the Palampur. Okay, and this electricity is not only used to provide the lightning facilities in Palampur, it is also used to for the irrigation purpose, means to run the tubewell, Persian wells, that electricity is also used. That means electricity is not only used to lighting the home, it is also used for the irrigation purpose, that is to running the tube well, electricity run tube well, and so also the Persian well.
Fine. Now come to the education and the healthcare facilities. Fine. In Palampur, there is 2 primary schools, okay, and one your high school is there. Fine. And one government healthcare center is there, and another private dispensary is also there. Fine. This is about the education and health facilities in Palampur. Now you tell me, I have given you certain features of the Palampur regarding the transportation, education facilities, electricity, and so also the communication facilities and your healthcare facilities. Now out of that, what can you conclude about the Palampur? Whether it is a developed village or underdeveloped village. If I will ask you the question, what type of village is Palampur? Then obviously the answer is it is a well developed village. Why it is well developed village? Because this village Palampur is well developed because it is having proper transportation, pakka roads, it is well connected with the towns, there is electricity facilities, there is healthcare facilities, private dispensary, as well as the government healthcare system, and also there is certain extent the educational facilities are there. There is 2 primary schools and 1 secondary school. So that means it is a well developed village. Fine. Now, so this is the first question. What type of village is Palampur? Palampur is a well developed village, and why it is well developed, that is already I explained. Fine. Now come to the what is the main activities of the Palampur? The main activities, economic activities of the Palampur is the farming. Farming means agriculture, through which the people are earning their livelihood. That means the main activities is farming, that is agriculture. But beside that also there are some non-farm activities are there. The people are doing the non-farm activities, and non-farm activities including the small manufacturing work, transportation works, and so also the shopkeeping, small grocery and the ration shops they are running in the Palampur. Fine. And now come to the organization of production. This is one part. So here 2 type of short questions you have covered. That is what is the main activities, economic activities of the Palampur. Also, what is the main activities through which the people of the Palampur are earning their livelihood? The answer is farming. And beside farming, what else activities are there? Beside farming, they are also carrying some non-farm activities. Give some example of non-farm activities. That is the shopkeeping, transportations, and so also the small manufacturing work. Is that clear? Okay. Now come to the next part, next topic. What is the next topic? Next topic is the organizations of production. Now, what is production actually? Production means it is one type of the economic activities through which we are taking some input, and through the processing the input we are getting the output. What do you mean by that? Let me to use the bilingual. Okay, हिंदी में बताती हूँ. प्रोडक्शन का मतलब होता है एक तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसमें हम कुछ इनपुट लेते हैं और उसको प्रोसेस करके आउटपुट निकालते हैं. जैसे हम लैंड लेते हैं, लेबर लेते हैं, कैपिटल लेते हैं, एंटरप्रेन्योर लेते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं, ये सारा इनपुट हो गया. और ये सब को लेके हमको मान लो वीट, राइस जो भी प्रोड्यूस करते हैं वो हो गई आपका आउटपुट. सो व्हाट इज प्रोडक्शन? Production is the economic activities through which we are putting the input into a process to get the output. Is that clear? Fine. Now, what is the objective of the production? The main objective of the production, there are 2 types of the objective. One objective it is given in your book. Beside that also by your own you can add another one line. What is that? The main objective of the production is to produce the goods and services to satisfy the human wants. And beside that also you can add another point. The second objective of the production is to earn the profit or income. Fine. Obviously अगर इनकम या प्रॉफिट नहीं मिलेगा तो लोग क्यों प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, है ना. तो 2 तरह का तुम्हारा प्रोडक्शन का 2 ऑब्जेक्टिव्स है, या एम है या ऑब्जेक्टिव्स है. क्या है उसको बोलते हैं? वन हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्टिव्स क्या है? टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, एंड सेकंड वन इज टू अर्न द इनकम. ओके, टू अर्न द इनकम और द प्रॉफिट आउट ऑफ द प्रोडक्शन. फाइन. नाउ द
how, what are the input we are taking while doing the production? The input which we are taking while doing the production, that is called factors of production. So question may come, what do you mean by factors of production? Factors of productions are the input which we are taking through the production, through the process of production. Matlab, in the process of production, whatever inputs we are taking, that is called factors of production. Now, what are the factors of productions? Give some example. Land, there are 4 factors of production: land, labor, physical capital, and human capital. You may write, instead of the human capital, you may write entrepreneur also. Okay, so there are 4 factors of the production. What are the 4 factors of production? Land, labor, physical capital, and human capital. Fine. Now the question is, I have told you, question is what do you mean by factors of production, and what are the factors of production? What do you mean by factors of production? Means the inputs which you are using in the process of production, that is factors of production. Then what the example is, the land, labor, your physical capital, and human capital, which is also called the entrepreneur. Is that clear? Now to come to the, what is the features of the land? The feature of the land is that the supply of land is fixed and it is a natural factors of production. Natural factors of production मतलब land को man create कर सकता है क्या? नहीं, it is not man-made. It is the natural factors of production. A supply of the land is fixed, means the supply is scarce, मतलब limited, मतलब जितना नेचर दिया है लैंड, जैसे पालमपुर में जितना हेक्टर ऑफ द लैंड नेचर दिया होगा उतना ही न रहेगा, बढ़ेगा क्या लैंड? नहीं, इसका मतलब सप्लाई ऑफ लैंड हो गया स्केयर, और उसका दूसरा वर्ड क्या है? लिमिटेड, और तीसरा क्या लिख सकते हैं उसकी जगह पे? फिक्स्ड. तो 3 ऑल्टरनेटिव वर्ड यू कैन राइट. द सप्लाई ऑफ लैंड इज डैश, द सप्लाई ऑफ लैंड इज फिक्स्ड, लिमिटेड और स्केयर. ठीक है? और क्या? इट इज अ नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. ठीक. ये जो लैंड है इसका 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है. लैंड हो सकता है फर्टाइल, इट मे बी लेस फर्टाइल, इट मे बी मोर फर्टाइल, और इट मे बी लेस फर्टाइल. हर विलेज या टाउन या कंट्री में इस तरह का लैंड 2 तरह का कैटेगरी का रहता है. कुछ कुछ मोर फर्टाइल होती है और कुछ कुछ लेस फर्टाइल होती है. फाइन. नाउ कम टू द नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. व्हाट इज द नेक्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज लेबर. Then what is labor? What type of product, whether it is man-made or natural? Labor is also the natural factors of production. It is not man-made. Fine. Acha. What is the next features of the labor? Labor compared to the land, its supply is abundant. In India, in case of the India, mainly you know that the supply of labor is abundant. आपको पता है जितना population बढ़ेगा उतना labor supply भी बढ़ेगा. तो सप्लाई ऑफ द लेबर इज अबंडेंट कंपेयर टू द लैंड. लैंड थोड़ा फिक्स्ड है लेकिन लेबर का सप्लाई फिक्स नहीं है. जितना पॉपुलेशन बढ़ेगा वो बढ़ता जाएगा. लेबर का और क्या फीचर्स है? लेबर 2 तरह का होता है. क्या भाई? एक तो एजुकेटेड, स्किल्ड, टेक्निकली एफिशिएंट लेबर होती है. दूसरी 2 अनएजुकेटेड, अनस्किल्ड लेबर होती है जो मैनुअल वर्क करता है, फिजिकल वर्क करता है. और जो टेक्निकली एफिशिएंट होता है वो स्किल्ड, व्हाइट कलर जॉब करता है. ठीक है? टेक्निकल एफिशिएंट जो इंजीनियर्स वगैरह जो है, डॉक्टर्स, दे आर द स्किल्ड लेबर. फाइन. नाउ कम टू द फिजिकल कैपिटल. फिजिकल कैपिटल क्या है? फिजिकल कैपिटल एक्चुअली होता है 2 तरह का. क्या है वो? एक होता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल. What is fixed capital? Fixed capital examples are land, building, tools, machine. These are fixed capital. Why it is called fixed capital? Because during the process of production, again and again we are using the fixed capital. बताओ, एक बार एक तुम अगर जैसा टेक्निक्स में टूल्स में हो गए, मान लो तुम्हारा ट्रैक्टर या कोई लैंड, एक बार प्रोडक्शन करते हो तो खत्म हो जाता है क्या? नहीं, नेक्स्ट ईयर फिर प्रोडक्शन करते हो तो सेम लैंड को यूज करते हो, सेम ट्रैक्टर को यूज करते हो. मतलब the land, building, tools, these are the fixed capital which is used again and again in the process of production. That is called fixed capital. So physical capital are 2 types. One is your fixed capital, second is your working capital. Working capital में क्या आता है? आता है money and raw material. Why it is called working capital? What are the features of the working capital? Once it is used up.
मतलब एक बार यूज किए खत्म हो गई उसकी यूज, और नेक्स्ट टाइम उसी मनी को या उसी रॉ मटेरियल को यूज नहीं कर सकते। जितना रॉ मटेरियल एक बार यूज किए खत्म हो गया, जितना मनी यूज किए खत्म हो गया। वंस इट इज यूज्ड अप, यू पी अप। फाइन, गॉट इट। दिस इज व्हाट कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। तो हम किस किस के बारे में पढ़े? पहले हम लैंड के बारे में पढ़े, उसके फीचर्स के बारे में पढ़े, फिर लेबर के बारे में पढ़े, उसके फीचर्स के बारे में पढ़े, फिर फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल का मतलब है जिसको टच कर सकते हैं, है ना, हो गया फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल के बारे में क्या पढ़े? दो तरह का होता है, फिक्स्ड और वर्किंग। फिर क्या फिक्स कैपिटल होता है, क्यों इसको फिक्स्ड बोला जाता है, क्या वर्किंग कैपिटल होता है और क्यों उसको वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। ठीक है, बता दी, खत्म। अब आता है लास्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट आर लास्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन? दैट इज द ह्यूमन कैपिटल और द एंटरप्रेन्योर। ये क्या है भाई? ह्यूमन कैपिटल और एंटरप्रेन्योर क्या है? द स्किल, द नॉलेज, द एक्सपर्टाइज विच इज प्रेजेंट विद द ह्यूमन बीइंग। तो फिर ये स्किल, एक्सपर्टाइज, नॉलेज, इसका क्या काम है? इसका काम है ये कि पहला जो 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम पढ़े, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल, ये तीनों को कंबाइंड करता है एक प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में, जो ह्यूमन कैपिटल अपना नॉलेज के हिसाब से। means the human capital brings the coordinations between the land, labor and physical capital and then carry on the production to get the output. This is what called, it is the most important factors of production. Human capital नहीं होने से land, labor और फिजिकल कैपिटल को किस तरह की कॉम्बिनेशन में डालना है, कितना लेबर के साथ कितना लैंड, कितना फिजिकल कैपिटल क्या क्या लेना है, ये अगर ह्यूमन कैपिटल नहीं रहेगा तो पता नहीं चलेगा। सो ह्यूमन कैपिटल ब्रिंग्स द कोऑर्डिनेशन बिटवीन द लैंड, लेबर एंड द फिजिकल कैपिटल। फाइन, ठीक है, तो आपका सेकेंड टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड टॉपिक, फार्मिंग इन पालमपुर। पालमपुर में कैसे फार्मिंग होती है? ठीक है, ये रखना। पालमपुर में जितनी पॉपुलेशंस है, मैं बताई थी आपको पहले ही जब अब शुरू की, क्या व्हाट इज द मेन एक्टिविटी ऑफ द पालमपुर? फार्मिंग। तो ओबियसली 75% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द पालमपुर आर एंगेज्ड इन फार्मिंग। 75% ऑफ पॉपुलेशन क्या काम करता है? एग्रीकल्चर में, फील्ड में काम करता है। ठीक है, अब वो लोग क्या कहते हैं, अब याद रखना 1960 से, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? देखो, जब फार्मिंग 75% लोग काम करते हैं, ओबियसली वो लोग क्या चाहेंगे? फिर फार्मिंग से ज़्यादा इनकम बढ़े, इनकम बढ़े तो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? कोशिश वो लोग करते हैं, लेकिन हमेशा ये हो नहीं पाता है। प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज द कंस्ट्रेंट? कंस्ट्रेंट मीन्स ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है? क्यों भाई इतने लोग काम करने के बाद क्यों उतना इनकम जनरेट नहीं होती है? प्रॉब्लम फर्स्ट आया लैंड में। लैंड जो एरिया है वो फिक्स्ड है। बताओ, दिन पे दिन तो पॉपुलेशन बढ़ता जाएगा, पॉपुलेशन जितना बढ़ेगा लेबर उतना बढ़ेगा, और उतना लेबर सप्लाई होगा एग्रीकल्चर में, मतलब उतना लोग एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड होंगे लाइवलीहुड अर्न करने के लिए। लेकिन उतना लैंड एरिया बढ़ रहा है क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए? नहीं, लैंड एरिया इज फिक्स्ड। 1960 से तुम्हारे बुक में जो दिया है, सिंस 1960 इन पालमपुर द लैंड इज रिमेनिंग फिक्स्ड, लैंड फिक्स्ड है। फिर क्या किया, लोग थोड़ा बहुत लैंड एरिया को बढ़ाने के लिए वो लोग क्या किए, एनक्रोच किए। एनक्रोच कैसा किए? जो वेस्ट लैंड था, जो एग्रीकल्चरल वेस्ट लैंड था, उसको भी कल्टीवेशन के अंडर लाए। लेकिन उसका भी एक लिमिट होता है ना कि कितना वेस्ट लैंड है, सबको एग्रीकल्चर के लैंड के अंदर अंडर द कल्टीवेशन लाए पाए कि नहीं? उतना भी जितना लिमिट था वो भी ले आए। उसके बाद खत्म हो गई उनका, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ता गया, लेकिन लैंड और है ही नहीं। तो भाई अभी प्रोडक्शन कैसे करेंगे? हाउ दे विल इंक्रीज देयर प्रोडक्शंस? अब पता है ना, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आपको पता है, ज़रूरत जहाँ होती है नया नया चीज़, नया नया इन्वेंशन वही होती है ना? तो पालमपुर में वही हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती गई, लैंड एरिया बढ़ा नहीं, तो लोगों के दिमाग में आया अब प्रोडक्शन कैसे करे भाई जिससे प्रोडक्शंस बढ़े। सो दैट इज मीन्स अगर लैंड एरिया को ज़्यादा बढ़ा के मोर प्रोडक्शंस करते हो, जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, मीन्स एक्सटेंड ऑफ लैंड को आप बढ़ाते हो, प्रोडक्शंस करते हो, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। वो चांस चला गया। अब जितना लैंड वेस्ट लैंड था जिसका अंडर द कल्टीवेशन लाना था वो ले चुके और नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या? नेक्स्ट है इंटेंसिव कल्टीवेशन, मतलब सेम लैंड में ज़्यादा प्रोडक्शंस करने के नया तरीका निकालना। अब कैसा नया तरीका निकाल सकते हैं? 2 वे में वो लोग ज़्यादा प्रोड्यूस किए। क्या?
एक हुआ मल्टीपल क्रॉपिंग, दूसरा हो गया तुम्हारा मॉडर्न मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। फाइन, ध्यान देना। जो पालमपुर है, पालमपुर में मॉडर्न मेथड याद रखना। पालमपुर एक मैं तुम लोग को पहले से पहला ये मैं बता चुकी थी कि पालमपुर में इलेक्ट्रिसिटी आ चुका था, जिसमें इरिगेशन फैसिलिटीज उनको इजीली अवेलेबल हुआ था। मतलब ट्यूबवेल था, पर्शियन वेल था, कुछ वेल था, टैंक्स था। पहले तो गवर्नमेंट कुछ तुम्हारा एंटायर विलेज को देखो एक क्वेश्चन यहाँ दिया है, एक लाइन तुम्हारा, सुन हाउएवर द फार्मर्स स्टार्टेड द सी ऑफ प्राइवेट ट्यूबवेल्स। पहले लोग प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाए एंड आफ्टर दैट मीन गवर्नमेंट भी कुछ ट्यूबवेल्स अपने तरफ से प्रोवाइड किया इरिगेशन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पालमपुर में इरिगेशन के फैसिलिटीज था, इसका मतलब मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शन वो लोग कर सकते थे। ठीक है, तो सारा जो फार्मर्स थे और मॉडर्न मेथड ऑफ प्रोडक्शंस किए। इस मॉडर्न और मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन में वो लोग क्या किए, मल्टीपल क्रॉपिंग किए। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है? मल्टीपल क्रॉपिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग मोर देन वन क्रॉप्स फ्रॉम द सेम फील्ड, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। तो एक साल में वो लोग 3 तरह का फसल प्रोड्यूस करते थे सेम फील्ड में, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग, प्रोड्यूसिंग मोर देन वन क्रॉप फ्रॉम द सेम फील्ड। ठीक है, दैट इज कॉल्ड मल्टीपल क्रॉपिंग। कैसे किए वो लोग? पहले वो लोग प्रोड्यूस किए खरीफ जो क्रॉप्स है। खरीफ क्रॉप्स किसको बोलते हैं? द क्रॉप्स विच कैन बी ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन। रेनी सीजन में जो क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, क्या प्रोड्यूस किया जाता है रेनी सीजन में? ज्वार, बाजरा। और ये जो ज्वार बाजरा है जो लोग प्रोड्यूस करते थे रेनी सीजन में, दैट इज मेनली मीन फॉर द एज ए फॉर्डर फॉर द कैटल। फॉर्डर मतलब गाय बकरी भैंस ये सब जो वो लोग पालते हैं उनको खिलाने के लिए ज्वार बाजरा वो लोग प्रोड्यूस। ऐसा तो तुम्हारा जो पुअर कैटेगरी के पीपल है वो लोग उसको, तुम जाओगे राजस्थान यूपी में, इससे ज्वार बाजरा को वो लोग आज स्टेपल डाइट भी यूज़ करते हैं, लेकिन पुअर कैटेगरी के पीपल, ऑल पीपल नहीं यूज़ करते हैं। सारे कैटेगरी जो रिच के पीपल होते हैं वो राइस और वीट को प्रोड्यूस करते हैं, मतलब स्टेपल डाइट के हिसाब से यूज़ करते हैं। फाइन, लेकिन ज्वार और बाजरा खरीफ क्रॉप्स है जो रेनी सीजन में प्रोड्यूस होता है, और वो क्रॉप्स वो लोग जनरली यूज करते, जनरली में बोली यूज करते हैं एज ए फॉर्डर ऑफ कैटल। ओके, फॉलोड बाय खरीफ क्रॉप्स दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग पटाटोज। सेम फील्ड में खरीफ क्रॉप्स निकल गया, उसके बाद वो लोग प्रोड्यूस किए पटाटोज। ठीक है, फिर पटाटोज के बाद दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स क्या है भाई? विंटर सीजन में जो प्रोड्यूस होता है, विंटर सीजन में जो प्रोड्यूस होता है। और विंटर सीजन में क्या प्रोड्यूस होता है? व्हीट। ठीक है, सो खरीफ क्रॉप्स दैट इज ज्वार बाजरा, followed by the potatoes, and again followed by the rabi crops, that is the wheat. That is what called multiple cropping, which the people of Palampur were doing. And how they, why they are able to produce 3 crops in Palampur? क्योंकि आपको पता है कि पालमपुर में इरिगेशन फैसिलिटीज था, तो खाली रेनी सीजन के ऊपर वो लोग डिपेंड नहीं किए थे पानी के लिए, उनकी इरिगेशन था। रेनी सीजन में रेन वाटर में हो गई, और जो ऑफ रेनी सीजन रहता था जैसे विंटर सीजन और जो अदर अटम वगैरह होता है उस सीजन में वो आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम में किए। अब उसमें गवर्नमेंट भी हेल्प किया था, गवर्नमेंट कुछ ट्यूबवेल लगा था, प्राइवेट ट्यूबवेल भी था, पर्शियन व्हील भी था, और इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज थी, इसीलिए वो लोग प्रोड्यूस कर पाए। तो ये हो गया वन वे ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्रॉम द सेम फील्ड, विच इज कॉल्ड इंटेंसिव कल्टिवेशंस। फाइन, अनदर वे मॉडर्न मेथड ऑफ टेक्नोलॉजी। मॉडर्न मेथड क्या? वो लोग पेस्टिसाइड यूज, क्या? HIV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, मॉडर्न टूल्स, मशीन्स, ये यूज करके भी ज्यादा प्रोड्यूस किए। HIV सीड्स क्या होता है? HIV सीड्स को बोलते हैं मिरेकल सीड्स। वाई मिरेकल? मिरेकल का मतलब मिरेकल वे में 4 to 5 times more productions from the same hectare of the land compared to the traditional seeds. ट्रेडिशनल सीड्स से 4 से 5 गुना ज्यादा HIV सीड्स में प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, पालमपुर का लोग वही किए। देखे लोग पॉपुलेशन बढ़ रहा है और उनके पास लैंड एरिया प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? सेम फील्ड में ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, और ज़्यादा प्रोड्यूस करना है तो क्या करेगा? HIV सीड्स यूज़ किया और पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर लिया और लोग प्रोड्यूस किया। ये कब हुआ था? लेट 1960s में, जिसको बोलते हैं क्या? ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? What do you mean by how you will define the green revolution? It is a biotechnical setup to produce more from the same piece. Produce more from the same hectare of the land.
biotechnical setup to produce more from the same hectare of the land by using HIV seeds and modern tools. That is called Green Revolution, which is introduced in late 1960s in India, and same started because you know that the Palampur is the imaginary village which is consisting in India only. So in late 1960s, the village of Palampur started this modern way of producing more through the Green Revolution. Fine? Okay, fine. Now come to the, just a minute, give me some time to just to go through your books so that I will get, if the questions will come in India, what are the parts where the Green Revolution was successful? Generally, Green Revolution was successful in Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh. Now, what are the reasons? Why it is more successful over there? क्यों इस एरिया में ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ? बोल सकते हो? क्योंकि देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? HIV सीड्स यूज़ करता है, केमिकल फर्टिलाइजर यूज़ करता है, पेस्टिसाइड यूज़ करता है, तो ये सारा खरीदने के लिए लोगों के पास ज़्यादा पैसा होना चाहिए, है ना, ये इनपुट्स करने। तो उस एरिया में ज़्यादा लोगों के पास ये सारा इनपुट्स खरीदने के लिए ज़्यादा पैसा था। ये हुआ पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि HIV सीड्स बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है वाटर, और दिस एरिया, the Punjab, Western UP and Haryana, in these area there was facilities of artificial irrigation. Artificial irrigation था, तो artificial irrigation होगा तो obviously लोग क्या कर पाएंगे? ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएगा। तो Green Revolution was more successful in Western UP, Haryana and Punjab. Question may come, why it is more successful? Because in this area more irrigation facilities are there. And as HIV seeds needs more water, so through the artificial irrigation they can provide more water to the seeds, and so also the people are having more working capital, that is money, so that they can afford the package input which is need, that like your HIV seeds, pesticides, fertilizer, etc. That's why it was more successful in this area. Now the question is, in Palampur the yield has increased. What do you mean by yield? IELD. Yield means production, more production from yield means the production from a field, from a particular field, the total production is called yield. Okay. जनरली गांव में जो yield है, जो लैंड है, क्वेश्चन वहाँ एक सब क्वेश्चन छूट गया मेरा, क्या है? लैंड एरिया को गांव में जो है बीघा या गुंठिया बोलते हैं, उसमें कैलकुलेट किया जाता है, लेकिन ऑफिशियल जो है, ऑफिशियल मेजर हो जाता है हेक्टर. So what is the standard unit to measure the per unit land? The per unit land, to measure the per unit land, the official standard unit is the hectare, but in village area we are using the word bigha or guntia. Fine. Now the question is, what I told, Green Revolution adopted. In Palampur also Green Revolution adopted, and after the use of the Green Revolution, that is through the HIV seeds, the yield of the field has increased. What is the yield? Yield means the total productions from the piece of the land, given piece of the land, that is called yield. ये yield बढ़ गया. कैसे बढ़ गया? In Palampur, the yield of the wheat grown from the traditional varieties, जहाँ traditional seeds use करते थे, तो वो लोग 1300 kg per hectare of the land से produce कर रहे थे, लेकिन जब HIV seeds वो लोग use किए, तब ये yield बढ़ गया और 3200 kg per hectare हो गया. कहाँ 1300, कहाँ 3200, मतलब ट्रेडिशनल सीड से पर हेक्टर से जब वो लोग 1300 पर केजी प्रोड्यूस करते थे, HIV सीड्स जैसे ही यूज़ किए वो लोग 3200 केजी पर हेक्टर वो लोग प्रोड्यूस किए. ठीक है, हो गया? आपको समझ में आ गया? नाउ द क्वेश्चन इज, ग्रीन रिवोल्यूशन तो एडॉप्ट कर लिए, क्या ग्रीन रिवोल्यूशन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस बढ़ाने के लिए यूज़ करना चाहिए? ये ग्रीन रिवोल्यूशन के क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स है? क्या मेरिट्स है और क्या डेमेरिट्स? एक तो मेरिट्स ये है, देखो ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ा, प्रोडक्शंस हुआ तो लोग जहाँ पहले प्रोड्यूस करके सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपना खाने के लिए खाली प्रोड्यूस कर पाते थे ट्रेडिशनल सीड से, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, राइस का प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ा, वीट की प्रोडक्शन 8 टाइम्स बढ़ गया, इसलिए ग्रीन रिवोल्यूशन का दूसरा नाम है वीट रिवोल्यूशन. Why? Because more impact of the production we have noticed in the wheat. Wheat production increase,
8 times more as compared to the traditional seeds through the using of the HIV seeds. So green revolution other name is the wheat revolution. Fine. तो क्या ये मेन तुम्हारा मेरिट्स क्या है ग्रीन रेवोल्यूशन का? प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, प्रोडक्टर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो गया। प्रोडक्शन इंक्रीज में डील क्या करोगे? राइस की प्रोडक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज हुआ और व्हीट की प्रोडक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज हुआ। और जब इंक्रीज होता है प्रोडक्शन क्या होता है? हम अपना खाने के लिए रखते हैं और जो बच जाता है उसमें क्या करते हैं? मार्केट में बेचते हैं, जिसको बोलते हैं मार्केटेबल सरप्लस। What do you mean by marketable surplus? Means the surplus which we are using to sell in the market. So green revolution से हमको बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ जिससे हम मार्केट में सेल कर पाए। और क्या, पहले हम लोग का जब फेमिन, ड्रॉट, फ्लड होता था तो लोग भूखमरी में मर जाते थे, है ना। जब ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ तो हमारा कंट्री इतना ज़्यादा प्रोड्यूस किया कि बफर स्टॉक भी मेंटेन किया। और जब बफर स्टॉक मेंटेन किया, जब ड्रॉट, फ्लड इस तरह का नेचुरल डिजास्टर होता था उस जगह पे बफर स्टॉक से प्रोड्यूस हुआ। अभी देखो, फिर मैं अभी एग्जांपल में आई थी, लाइव एग्जांपल। अब जब कोविड-19 हुआ है तुम्हारा क्या हुआ? देख रहे हो कि सारा प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ बंद हो गया। जब लोगों को लॉकडाउन कर दिया गया, कर दिया गया तो जो लोग कमा नहीं पा रहे थे, खा नहीं पा रहे थे, तो लोग गवर्नमेंट क्या कर रहा है? बफर स्टॉक से निकाल के उनको अनाज जो है पीडीएस सिस्टम से दे रहा है। राशन प्रोवाइड कर रहा है ना, 5 किलो अनाज सबको फ्री दे रहा है ना। ये इसको क्या बोलते हैं? फूड सिक्योरिटी। तो फूड सिक्योरिटी कहां से हुआ? ये बफर स्टॉक गवर्नमेंट कहां से लाया? थ्रू द ग्रीन रेवोल्यूशन। ज्यादा प्रोड्यूस हुआ, गवर्नमेंट उसको खरीद लिया और बफर स्टॉक मेंटेन किया। और ये बफर स्टॉक को जब नेचुरल डिजास्टर होता है तब वो लोगों को प्रोवाइड करता है, फूड सिक्योरिटी मेंटेन करता है कंट्री में। सो सेकंड मेरिट्स हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन का कि इट एंश्योर द फूड सिक्योरिटी इन द कंट्री थ्रू द बफर स्टॉक। ठीक है। तीसरा क्या? तीसरा हुआ क्या? तीसरा हुआ इट रेजेस द लेवल ऑफ इनकम ऑफ द पीपल। लोगों का इनकम लेवल बढ़ा दिया। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ वहाँ लोगों का इनकम बढ़ गई। ओके, नाउ कम टू द डिमेरिट्स। डिमेरिट्स कहाँ आएगा? आपका एक टॉपिक दिया है, विल द लैंड सस्टेन। ये ना ग्रीन रेवोल्यूशन का डिमेरिट्स को कवर किया हुआ है। मतलब कोई भी लैंड अगर हम बार बार उसमें हम अगर सोचेंगे कि बार बार ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, HIV सीड्स यूज़ करेंगे, पेस्टिसाइड यूज़ करेंगे तो ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, तो अच्छी बात है? नहीं, अच्छी बात नहीं है। ये एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। एनवायरनमेंट को कैसे डिग्रेड करता है? आपको पता है कि HIV सीड्स क्या करता है? बहुत ज़्यादा वाटर, अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्व करता है। आर्टिफिशियल इरिगेशन बहुत ज़्यादा वाटर, तो अंडरग्राउंड वाटर डिप्लीट हो जाती है। सेकंड क्या? HIV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स का डिमांड करता है, तो वो सारा जब यूज़ करते हैं अगेन एंड अगेन, लैंड की जो और सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो रिड्यूस कर जाता है। रेगुलर यूज ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर एंड द पेस्टिसाइड्स हैव नेगेटिवली हैम्पर द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, ये रिड्यूस हो जाए। तीसरा क्या? ये जो हम केमिकल फर्टिलाइजर और ये जो पेस्टिसाइड यूज़ किए, ये जब वॉश अवे होता है, पानी बढ़ता है, बारिश होता है, बारिश होने के बाद ये धुल के जब जाता है, दैट इज गेटिंग मिक्सड विद द वाटर बॉडीज एंड वाटर गेट कंटामिनेटेड with this chemical and it makes the life of aquatic animal endangered and it create the different type of the disease. चौथा क्या है? चौथा ये है कि इस ग्रीन रिवोल्यूशन से थ्रू द HIV सीड्स केमिकल फर्टिलाइजर जो भी यूज़ करके हम प्रोड्यूस करते हैं, जो क्रॉप्स यूज है, नाइदर इट इज़ द जो फूड आइटम्स है या जो भी प्रोडक्ट है, नाइदर इट इज़ हेल्दियर नॉर इट इज़ टेस्टियर। इज दैट क्लियर? लेकिन क्या करें, अल्टीमेटली हमको डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि पॉपुलेशन जब इंक्रीज होगा, एवर इंक्रीजिंग डिमांड को फुलफिल करने के लिए हमको तो ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसलिए हम ग्रीन रिवोल्यूशन को अडॉप्ट करते हैं। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन का बहुत सारा डिमेरिट्स भी है। ये बहुत दिन तक लैंड की फर्टिलिटी को बजाय नहीं रखता है। इसमें क्या होती है, लैंड की फर्टिलिटी धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है और एनवायरनमेंट को डिग्रेड करता है। कैसे डिग्रेड करता है आपको बता दी। तो आप इसमें ग्रीन रिवोल्यूशन का नेगेटिव इम्पैक्ट भी हम कवर कर लिए। फाइन, now I think I should remain here with your first part of your this chapter. Okay, bye bye. Wait for my next video for the next part. Thank you, students.